Good morning students, this is GK video. We have done creepy crawlies till creepy crawlies. It was coming to your post periodic exam and it has finished with that, and after that we are going to start with the new chapter, that is Hello Scientist, on page number 38. So let's begin with the chapter. Come to the page number 38. You will find out the chapter name, that is Hello Scientist. It is talking about the scientists and their achievements, and you have to write down their names in the box given or the fill up given. Clear? After that we will start with the partners, which is on page number 39. So today I am going to combine those two chapters in this video, and we are going to do two chapters in each day. That's why we have less time to finish our GK syllabus. That's why I'm doing this. So you have to make sure that two chapters we are combining and we are finishing up in a one day. So let's begin with the explanation of chapter number Hello Scientist and partners on page number 38 and 39. This is chapter Hello Scientist on page number 38. As you can see, these are the photos given with the names, and these are the explanation which they have achieved. Clear? So you have to just find out what achievement matches to the person. He was the only Indian scientist to be honored with the Nobel Prize in Physics for scientific research carried out exclusively in India. साइंटिफिक जो रिसर्च जितने भी इंडिया में हुए हैं, उन अगर फिज़िक्स की बात करें तो उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और वो कौन है? CV रमन है. ठीक है. सो राइट डाउन CV रमन on today's date. And it is said that he could talk to plant. He invented crystallograph, an instrument that could measure the growth of a plants. ये ऐसे इंसान थे जो ऐसे बोला जाता है कि ये प्लांट से भी बात कर लेते थे. ठीक है. तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ. ये क्या करता है? ग्रोथ बता देता था कि प्लांट कितने साल का है या फिर कितना पुराना है. ठीक है. तो इनका नाम क्या है? जेसी बोस. इट्स बासु, लेकिन इनका नाम है जेसी बोस. ठीक है. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद. He is called the father of Indian space program. He died in 1971. ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं. ठीक है. और इन्होंने ही पूरा इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूरा डिफ़ाइन किया है और उनको समझा है. तो और ये ख़त्म कब हुए थे? 1971 में. तो इनका नाम है विक्रम साराभाई. ये हैं जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर माने गए. ठीक है. ही इज़ फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. ही इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. इंडिया में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसके कारण बहुत ज़्यादा खेती किसानी होने लगी थी, जिसमें गेहूँ चावल ये सब बहुत ज़्यादा उगाए गए थे एक टाइम पे. तो फिर उनको फादर ऑफ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हैं MS स्वामीनाथन. ये हैं. ठीक है. इन्होंने ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं. नाउ ही इज़ कॉल्ड द मिल्कमैन ऑफ इंडिया. ही वॉज द फाउंडर ऑफ अमूल डेयरी इन आनंद, गुजरात. वर्गीस कुरियन, ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया माने गए हैं. और अमूल डेयरी, जो आप जानते हैं, अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ये इन्हीं के ही कंपनी के थ्रू आते हैं. सो इन्होंने ही वो कंपनी फाइंड आउट की थी. फाउंडर हैं वो उसके. इनका नाम है वर्गीस कुरियन. Now, it is said that his eyes were on the stars. He was awarded with the Nobel Prize for Physics in 1983. उनके ऐसे बताते हैं कि उनकी जो नज़रें थी वो स्टार्स पे रहती थी, और इनको नोबेल प्राइज़ किसकी वजह से दिया गया है? फिज़िक्स की वजह से. कब दिया है? 1983 में. इनका नाम है S. चंद्रशेखर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ S. चंद्रशेखर. You have to write down the proper spelling of Chandrasekhar. It's a long one. So write it. He is called the Missile Man of India. He became the President of India. So Missile Man of India सभी को पता है, वो मिसाइल्स में और इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, और वो प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के.
बन चुके हैं जो, और अब नहीं रहे हैं, वो हैं APJ अब्दुल कलाम. क्लियर? So these are the spellings with their pictures, and you have to write the proper spelling in the fill-ups given. It is on page number 38. Now I have told you that we are including 2 chapters in single video. That's why I'm doing this chapter as well. So it is on page number 39, partners. As you can see, there are the pictures given and their partner's name is written over here. You have to write those words which are partners of these words. Clear? वेल नोन कैरेक्टर्स हैं जो शायद आपने सुने भी हैं, समझे भी हैं, तो उन्हीं के पार्टनर्स के नाम लिखने हैं. जैसे अली बाबा एंड 40 थीव्स. ठीक है, अली बाबा और 40 चोर, ये तो स्टोरी सबने सुनी है. सावित्री एंड सत्यवान, ये भी एक स्टोरी है. डेविड एंड गोलियाथ, ये भी एक स्टोरी है. अकबर एंड बीरबल, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्टोरी. एंड्रोकलस एंड लॉयन, इसकी भी एक स्टोरी है. स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ, इनकी भी स्टोरी है. रोमियो एंड जूलियट सबसे बड़ा ड्रामा है जो शेक्सपियर का. राम एंड सीता, एवरीबडी नोज. राधा एंड कृष्णा, ये भी सब जानते हैं. द हेयर एंड द टॉर्टोइज, ये तो सबने पढ़ा ही है बचपन में. सो दीज आर द पार्टनर्स, फेमस पार्टनर्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं. तो आपको इनके नाम लिखने हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे सावित्री का यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो मतलब चीज़ें ये हैं कि उनके साथ, पार्टनर्स के साथ मैच करना है आपको और उनकी स्पेलिंग्स लिखनी है. क्लियर? सो आई विल गिव यू द पिक्चर ऑफ दीज टू एंड देन you will start doing your work and show it to me in the WhatsApp class. Okay, thank you so much.